Welcome to BioKey for NEET. Before we start, please subscribe the channel and support our cause to bring best preparatory materials for NEET biology. Hello everyone, welcome back to our channel BioKey for NEET. यहाँ पर मैं आप लोग के लिए हर रोज 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट 2025 ला रहा हूँ बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिससे आपका प्रैक्टिस होगा और आप अपने एग्जाम पे बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। हमारा आज का टॉपिक है एनिमल फिजियोलॉजी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, what is the structural and operational component of the mammalian nervous system? What is the structural and operational component of the mammalian nervous system? Option 1, axon, 2, dendron, 3, neuron, or 4, brain. So answer is neuron. Neuron is a nerve cell that has several branches, and it is also the longest living cell. Okay, इसका फंक्शन और साइज दोनों के हिसाब से ये डिफाइन करता है नर्वस सिस्टम को। नेक्स्ट, which of the following describes the human eye's innermost layer? Which of the following describes the human eye's innermost layer? Option 1, retina, 2, choroid, 3, sclera, or 4, cornea. तो if this is the eyeball, यहाँ पे हमारा लेंस होता है and cornea is here, और यहाँ पे ऑप्टिक नर्व सेल होती है। ठीक है, तो आंसर इज रेटिना। आंसर इज रेटिना। नेक्स्ट, the vertebral column in the human body has dash number of bones. वर्टिबल कॉलम में, ह्यूमन बॉडी के वर्टिब्रल कॉलम में कितने बोन्स होते हैं? ऑप्शन 1 33, 2 43, 3 23 और 4 56। वर्टिब्रल कॉलम को हम लोग और क्या कहते हैं? स्पाइन। आपके स्पाइन में टोटल कितने बोन्स होते हैं? Answer is 33, which are irregular in size. There is no uniformity in the size. Okay, and they will combinedly make up our spinal column, and they are joined together by intervertebral discs. Intervertebral disc से ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट, what is the dental equation for a grown up person? एक ग्रोन अप पर्सन का डेंटल इक्वेशन क्या होगा? A 2133 by 2133, 2 2123 by 2123, 3 2103 by 2103, or 4 123 by 0123. Answer is 2. Okay, ये डेंटल फॉर्मूला क्या शो करता है? इट शोज हाउ द टीथ आर पोजिशन्ड इन द टॉप एंड लोअर रोज। हमारे जॉ के ऊपर लाइन में और नीचे वाले लाइन में टीथ का पोजिशनिंग क्या है, इससे हम किससे पता चलता है? डेंटल इक्वेशन से। ओके, इसमें क्या होगा? 2 इंसीजर्स होंगे, एक कैनाइन होगा, 2 प्री मोलर्स होंगे और 3 मोलर्स होंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट, hormones that influence cells at the time of their creation and are circulated through the blood are estradiol, cortisol, prostaglandins and thromboxane, 3 prednisolone and prednisone, or 4 thyroxine and glucagon. Okay,
Answer is this: prostaglandins and thromboxane. देखिए इसमें पूछ क्या रहा है, हार्मोन्स दैट इन्फ्लुएंस सेल्स एट द टाइम ऑफ देयर क्रिएशन एंड आर सर्कुलेटेड थ्रू द ब्लड्स आर। होता क्या है, हार्मोन्स दैट फंक्शंस क्लोज टू द साइट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रेशंस आर नोन एज पैराक्राइन हार्मोन्स। जो जहां पे बनते हैं उनका साइट ऑफ एक्शन वही हो तो वहां पे उसको क्या कहेंगे, पैराक्राइन हार्मोन्स। ओके, नेक्स्ट, द मोस्ट एक्टिव phagocytic white blood cells are the most active phagocytic white blood cells are. Answer is, so options are eosinophils and lymphocytes, neutrophils and monocytes, neutrophils and eosinophils, or lymphocytes and macrophages. इनमें से कौन सा मोस्ट एक्टिव phagocytic white blood cells होता है? आंसर इज न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। देखिए phagocytosis क्या होता है? Phagocytosis is the process by which certain WBCs engulf and digest pathogens. Engulf and digest pathogens. और उनकी जो भी डिब्री निकलेगी सबको वो क्या करते हैं, इंगल्फ करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, इनमें न्यूट्रोफिल जो होता है, दिस इज पार्ट ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। न्यूट्रोफिल is part of first line of defense in the innate immune response. These are highly abundant in the blood, highly abundant in the blood, and they will rapidly migrate to the infection site. बहुत जल्दी ये infection के साइट पे मूव करते हैं neutrophils. And monocytes ये क्या करते हैं, they circulate in the blood and migrate into tissues where they differentiate into macrophages and dendritic cells. ये ब्लड से माइग्रेट होंगे, साइट ऑफ एक्शन पे जाएंगे टिश्यूज में, और यहां जाकर के ये अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं किसमें, मैक्रोफाजेस एंड डेंड्राइटिक सेल्स में। These are the two most active phagocytic white blood cells. Next, inadequate supply of oxygen to heart muscles leads to a symptom of acute chest pain. This symptoms of the circulatory system is identified as, अगर हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं हो रही है, इनएडिक्वेट सप्लाई हो रही है, तो एक्यूट चेस्ट पेन होता है। इसको हम लोग क्या टर्म देते हैं? फर्स्ट, कार्डियक अरेस्ट, 2, हार्ट फेलियर, 3, कोरोनरी हार्ट डिजीज, और 4, एंजिना पेक्टोरिस। So answer is 4, angina pectoris. What is this? It is a clinical condition characterized by acute chest pain or discomfort. Why? Because it is caused by temporary reduction in blood supply of oxygen, okay, to the heart muscles. और कौन से मसल्स हैं ये? मायोकार्डियम मसल्स पे। यहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई लो हो जाती है ब्लड से, ओके, तो ये हमको सिम्टम देखने को मिलता है। कंडीशन इज एंजिना पेक्टोरिस। नेक्स्ट, the total thickness of the diffusion membrane of alveolar capillary is, the total thickness of the diffusion membrane of alveolar capillary is less than 1 centimeter, less than 2 centimeter, less than 1 millimeter, or more than 1 millimeter. तो एल्वियोलर कैपिलरी होता क्या है? यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, यहाँ पे
गैसियस एक्सचेंज होता है लंग्स में। ओके, इट अलाउज ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द alveoli into the blood and carbon dioxide to move from blood into the alveoli. All right, answer is less than 1 mm. Next, pancreatic amylase acts on which substrate? Pancreatic amylase acts on which substrate? Proteins, lipids, starch or cellulose? तो पैनक्रेटिक अमाइलेज करता क्या है? ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा माल्टोज में एंड अदर डाइसेक्राइड्स, और ये कहां पे करता है? ये इसका साइट ऑफ एक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कहां इसका साइट ऑफ एक्शन होता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सो आंसर इज सी, स्टार्च। इसका सबस्ट्रेट क्या होगा? स्टार्च। ओके, इसको वर्क करने के लिए एक और चीज की जरूरत होती है, ये होता है न्यूट्रल पीएच। जब तक न्यूट्रल पीएच नहीं होगा तब तक ये एंजाइम काम नहीं करेगा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। और न्यूट्रल पीएच को कौन मेंटेन करता है? इट इज मेंटेन्ड बाय बाइकार्बोनेट्स। Okay, it will maintain the neutral pH so that pancreatic amylase starts breaking down starch into maltose and other disaccharide in small intestine. Next, approximately 70% of carbon dioxide absorbed by the blood will be transported to the lungs. Okay, किस फॉर्म में? As bicarbonate ions in the form of dissolved gas molecules by binding to the RBC or as carb amino hemoglobin. कैसे आता है? आंसर इज बाइकार्बोनेट आयंस। ओके, होता क्या है? बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन कैसे होता है? आरबीसीज में CO2 प्लस H2O, ये क्या करता है? ये बनाता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, and then it will further break down into H plus and HCO3 minus bicarbonate ions। और इसको कैटेलाइज कौन करता है इस पूरे प्रोसेस को? कार्बोनिक अनहाइड्रेज नाम का एंजाइम। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम होता है, ये पूरे इस प्रोसेस को, बाइकार्बोनेट आयन के बनाने के प्रोसेस को कैटेलाइज करता है। नाउ this bicarbonate HCO3, it will move into plasma and will be carried into the, ये प्लाज्मा में आ गया, इसके बाद ये लंग्स तक को इसको पहुंचा दिया जाता है। नेक्स्ट, the enzyme responsible for the digestion of milk proteins in infants are, the enzyme responsible for the digestion of milk proteins in infants is trypsin, pepsin, renin or lipase. आंसर इज रेनिन, जिसको हम लोग कहते हैं, एक और नाम से जाना जाता है ये काइमोसिन। इट इज प्रेजेंट इन इन्फेंट्स। ये कहां मिलेगा हमको? ये इन्फेंट्स में मिलता है। एंड इट हेल्प्स कोएगुलेट मिल्क प्रोटीन कैसीन। ये कैसीन का कोएगुलेशन करता है जिससे कि ये इजीली डाइजेस्ट हो जाए। इट विल help in coagulation of this milk protein casein so that it can easily digest. And this renin is
totally absent in adults. It is only found in newborns. Next, absorption of glucose in the intestine occurs through absorption of glucose in the intestine occurs through. intestine में ग्लूकोज का absorption कैसे होता है? सिंपल डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस और फेगोसाइटोसिस. तो होता क्या है? आंसर इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. Glucose is absorbed actively using sodium glucose co-transporters, जिसको हम लोग कहते हैं SGLT. और क्या होता है इसमें? एनर्जी इज यूज्ड to maintain the gradient of sodium ions necessary for glucose uptake. तो सोडियम आयंस को यूज करके हम लोग ग्रेडियंट को, हम लोग नहीं, मिस बॉडी ग्रेडियंट मेंटेन रखती है कि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता रहे. दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट, which of the following statement is true regarding villi of the small intestine? Which of the following statement is true regarding villi of the small intestine? A, they secrete bile. B, they help in peristalsis. C, they increase surface area for absorption. Or D, they produce pepsin. villi होता क्या है? These are finger-like projection. Finger-like projections. ओके, कहां होते हैं ये? स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं. तो ये क्या करता है? इट विल मैक्सिमाइज सरफेस एरिया. इट विल मैक्सिमाइज सरफेस एरिया. आंसर इज दे इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. ओके, अगर ये सरफेस एरिया अपना इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या होगा? दे विल अल्टीमेटली enhance the absorption of nutrients. They will enhance the absorption of nutrients. Next, bile is secreted by. Bile is secreted by gallbladder, liver, pancreas or duodenum. तो ये एक ऑर्गन में सिक्रीट होता है और एक ऑर्गन में जाकर के ये स्टोर होता है. Then it is released further into another organ. लीवर में ये सिक्रीट होगा, गॉल ब्लैडर में ये स्टोर होता है और फिर ड्यूडेनम में ये रिलीज कर दिया जाता है. क्यों किया जाता है? बिकॉज इट कैन, सो दैट इट कैन इमल्सिफाई फैट्स फॉर लाइपेज एक्शन. सो दैट इट कैन emulsify fats for lipase action. Lipase is an enzyme which breaks down fat, lipids. Okay, so bile is secreted in liver, stored in gallbladder, released in duodenum to emulsify fat so that lipase can act on them. Next, cholecystokinin CCK acts on stomach, liver, pancreas and gallbladder or colon. CCK करता क्या है? CCK एक ऑर्गन है जो आपको आंसर करना है. इसको क्या करता है? स्टिमुलेट करता है टू रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ओके, एक काम ये और करता है.
ये क्या करता है, ये गॉल ब्लैडर को ट्रिगर करता है, ये गॉल ब्लैडर को ट्रिगर करता है टू रिलीज बाइल। सो CCK acts on pancreas and gallbladder. Gallbladder, तो जब ये पैनक्रियाज को ट्रिगर करता है, स्टिमुलेट करता है, तो क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं। गॉल ब्लैडर को जब ट्रिगर करता है तो क्या होता है, बाइल रिलीज होता है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन बिगिंस इन। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां स्टार्ट होता है, स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन और कॉलन। आंसर इज माउथ। कैसे, माउथ में हमारे एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। ये क्या करता है, ये स्टार्च को ब्रेक करता है, किसमें, माल्टोज में। सो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, इट्स डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ ओनली। नेक्स्ट, द पैनक्रियाटिक एंजाइम दैट डाइजेस्ट्स लिपिड्स इज। वो पैनक्रियाटिक एंजाइम जो कि लिपिड को डाइजेस्ट करता है, लाइपेज, अमाइलेज, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। आंसर इज लाइपेज। जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है, पैनक्रियाटिक लाइपेज, ये करता क्या है, ये ट्राइग्लिसराइड्स को ब्रेक करता है, किसमें, फैटी एसिड्स में प्लस मोनोग्लिसराइड्स, सॉरी मोनोग्लिसराइड्स, मोनोमर्स में। और ये कहां काम करता है, इट विल एक्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये ट्राइग्लिसराइड को इसमें ब्रेक कहां करेगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक करता है। ओके, नेक्स्ट, protein digestion in small intestine is aided by. Protein digestion in small intestine is aided by pepsin, renin, trypsin and chymotrypsin or deamylase. Answer is trypsin and chymotrypsin. ये पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं और प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। प्रोटियोलिटिक मींस प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। ओके, तो ये किससे सिक्रीट होती हैं, पैनक्रियास से सिक्रीट होती हैं, एंड दे आर एक्टिव इन ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में होता है, वेयर दे विल ब्रेक पेप्टाइड्स इनटू अमाइनो एसिड्स। जो ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये पेप्टाइड्स को ब्रेक करती हैं, किसमें, अमाइनो एसिड्स में। नेक्स्ट, which structure prevent food from entering the windpipe? Which structure prevents food from entering the windpipe? जब आप खाना खाते हैं तो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि उसको विंड पाइप में जाने के लिए रोकता है, एपिग्लोटिस, ग्लोटिस, फेरिंग्स और लैरिंग्स। जब आप खाना स्वॉलो करते हैं तो वो विंड पाइप में ना जाए, उसके लिए क्या यूज होता है, एपिग्लोटिस। ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, और ट्रैकिया के पास में रहता है ये, इट इज क्लोज टू ट्रैकिया, विंड पाइप। जब हम लोग खाना खाते हैं तो सो दैट वी डोंट चोक ऑन इट, एपिग्लोटिस शट्स इट डाउन। नेक्स्ट, which among the following secretes mucus to lubricate food passage?
Which among the following secretes mucus to lubricate food passage? Esophagus, goblet cells, pancreas or villi? देखिए होता क्या है, ये गॉबलेट सेल्स होते हैं, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल, दीज आर प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल। और ये करते क्या है, ये एलिमेंट्री कैनाल के लाइनिंग पे रहते हैं, ओके। सो दे विल सिक्रीट म्यूकस, ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं। इज द पैसेज ऑफ फूड एंड प्रोटेक्ट द लाइनिंग, ये लाइनिंग को भी प्रोटेक्ट करते हैं और फूड का पैसेज भी इजीली हो जाता है। नेक्स्ट, द मेजर साइट ऑफ फैट डाइजेशन इज, द मेजर साइट ऑफ फैट डाइजेशन इज, अभी हमने बताया लाइपेज। लाइपेज कहां पे काम करता है, लाइपेज स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करता है, ओके। ड्यूडेनम से, जो गॉल ब्लैडर से ड्यूडेनम में आता है बाइल, जो कि सिक्रीट किया जाता है लीवर से, लीवर से सिक्रीट होने के बाद गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से ड्यूडेनम में आया, ड्यूडेनम से क्या होता है, फैट का इमल्सिफिकेशन होता है, देन इट विल ट्रेवल इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पे ये पैनक्रियाटिक जो लाइपेजेस होते हैं, ये फैट का डाइजेशन करते हैं, फैट को डाइजेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, यूरिक एसिड इज द चीफ नाइट्रोजिनस कंपोनेंट ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ, यूरिक एसिड इनमें से किसका चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, फ्रॉग, मैन, अर्थवर्म और कॉकरोच? तो जो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या कहते हैं, यूरिकोटैलिक, मींस दे विल एक्सक्रीट यूरिक एसिड, जो कि लेसर टॉक्सिक होता है और वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड होता है। आंसर इज कॉकरोच। नेक्स्ट, which of the following is not a part of a renal pyramid? इनमें से कौन सा रीनल पिरामिड का पार्ट नहीं है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग डक्ट्स और लूप्स ऑफ हेनले? सो रीनल पिरामिड किसका पार्ट होता है, इट इज द पार्ट ऑफ मेडुला ऑफ द किडनी, मेडुला ऑफ किडनी, रीनल पिरामिड इज द पार्ट ऑफ मेडुला ऑफ किडनी। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है लूप्स ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट्स, वासा रेक्टा, ओके। और क्या नहीं होता है, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। नेक्स्ट, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज, so TV is tidal volume, IRV is inspiratory reserve volume, and ERV is expiratory reserve volume. I hope you know that. RV is reserve volume. Answer is A. Vital capacity of lungs is equal to tidal volume plus inspiratory reserve volume plus expiratory reserve volume. So what does vital capacity means? Actually, vital capacity represents the maximum amount of air a person can exhale after taking the deepest possible breath. आपने डीपेस्ट एक ब्रेथ लिया, उसके बाद कितना मैक्सिमम एयर आप एक्सहेल कर पा रहे हो, दैट इज वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, ओके। इससे हम लोग क्या मेजर करते हैं, दिस मेजर्स लंग हेल्थ एंड फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, the total thickness of the diffusion membrane of alveolar capillary is, the total thickness of the diffusion membrane of alveolar capillary is,
अभी हमने लास्ट में सिमिलर क्वेश्चन किया था. सो आंसर इज लेस देन 1 मिलीमीटर. इट इज एक्सट्रीमली थिन, जिससे सिर्फ एफिशिएंट गैस एक्सचेंज होता रहे एल्वियोली में और कैपिलरीज में. जनरली इसका जो थिकनेस होता है अराउंड 0.5 माइक्रोमीटर के अराउंड होता है, और 0.0005 mm. इट इज लेस देन 1 mm, जिससे कि रैपिड डिफ्यूजन होता रहता है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में. नेक्स्ट, digestive tract with additional chamber crop and gizzard is feature of. Digestive tract with additional chamber crop and gizzard is feature of. इनमें से किसका फीचर है? एडिशनल चैम्बर क्रॉप रहेगा और गिजर्ड रहेगा. कोलंबा, कैलोटस, हेमिडैक्टाइलस, कैमिलियन. आंसर इज कोलंबा. इसको हम लोग क्या कहते हैं कॉमनली? कॉमनली दिस इज नोन एज pigeons. Okay, it has a digestive system with additional chambers, जिसको कहते हैं क्रॉप एंड गिजर्ड. ये क्या करता है? ये फूड स्टोरेज का काम करता है और डाइजेशन में भी हेल्प करता है. तो क्रॉप जो होता है ये टेम्परेरी फूड स्टोरेज का काम करेगा, उसको सॉफ्टन करने का काम करेगा. दिस क्रॉप ये प्राइमरली फूड स्टोरेज का काम करता है और फूड को सॉफ्टन कर देता है. और जो गिजर्ड होता है ये क्या करता है? ये फूड की ग्राइंडिंग करता है. इट हेल्प्स इन ग्राइंडिंग फूड. और कैसे करता है? यूजिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. नेक्स्ट, सिंपल एपिथेलियम हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एक्सेप्ट. सिंपल एपिथेलियम का इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, प्रोटेक्शन और एंड सिक्रीशन. इनमें से कौन सा नहीं है? सो आंसर इज प्रोटेक्शन. ओके, तो इसके पास क्या होता है? सिंपल एपिथेलियम के पास इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स दैट अलाउज इजी एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस. ओके, तो अब प्रोटेक्शन का काम कौन करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम. स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ये प्रोटेक्शन का काम करता है, नॉट दिस. नेक्स्ट, which of the following systems transmits impulses from CNS to involuntary organs and smooth muscles? Which of the following systems transmits impulses from CNS to involuntary organs and smooth muscles? Somatic neural system, endocrine system, autonomic neural system, or D1 and 3 both? Autonomic neural system means ANS. Answer is this. ANS is responsible for transmitting impulses from the CNS to involuntary organs and smooth muscles. ओके, यही करता है काम ट्रांसमिशन का. यहां से लाता है, इनवॉलंटरी ऑर्गन्स को देता है और स्मूथ मसल्स को देता है सिग्नल. नेक्स्ट, ग्रेव्स डिजीज अकर ड्यू टू. Graves' disease occur due to hyposecretion of hypothalamic hormone, hyposecretion of corticoids hormone, hyposecretion of pituitary hormone, or hyposecretion of thyroid hormone. So that you know, Graves' disease is an autoimmune disorder. Autoimmune disorder, जहां पे अपनी बॉडी अपने ही खिलाफ काम करना शुरू कर देती है.
और इससे होता क्या है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन होता है। तो ये किसकी तरह इसके शो करेगा सिम्टम्स, हाइपोथायराइडिज्म की तरह, हाइपोथायराइडिज्म की तरह ही सिम्टम्स शो करता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, हाइपोथायरम होगा, थायराइडिज्म में क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाती है, मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाती है। तो उससे क्या होगा, डाइजेशन फास्ट हो रहा है, कितना भी खाते जाओ फास्ट होते चले जा रहा है, वेट लॉस हो रही है, नर्वसनेस रहता है, हार्ट रेट हमेशा इंक्रीज रहेगा, चूंकि मेटाबॉलिज्म जब हाई रहेगा तो उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, चीजों के लिए। तो हार्ट जो है आपका रेस्पिरेशन भी तेज रहेगा, हार्ट रेट तेज रहेगा, आईज प्रोट्रूडिंग रहेंगी, बल्जिंग आईज रहेंगी, ऐसा कुछ होता है। नेक्स्ट, आई एम अ प्रोटीन हार्मोन and have no iodine in my structure. I can manage normal calcium level in your body and my source gland is thyroid. Can you identify me? इनमें से किस एंजाइम का ये बिहेवियर है? इसको हम लोग कहते हैं, आंसर इज TCT, थायरो कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन। इसको हम लोग सिर्फ कैल्सिटोनिन भी कहते हैं। Okay, it is a protein hormone produced by parafollicular cells of thyroid gland. जो थायराइड ग्लैंड के सी सेल्स होती हैं, जिसको हम लोग पैराफॉलिकुलर सेल्स भी कहते हैं, ये प्रोड्यूस करता है। और थायरॉक्सिन में क्या होता है, थायरॉक्सिन में आयोडीन रहेगा, सो इट क्लियरली सेज हैव नो आयोडीन। ओके, तो ये क्या करता है, इट्स मेन फंक्शन इज टू रेगुलेट calcium homeostasis by lowering blood calcium levels. Next, unstriped muscles are also known as, unstriped muscles are also known as visceral, smooth, involuntary, all. Answer is all. तो जो अनस्ट्राइप्ड मसल्स होती है ना, ये विसरल भी होती हैं, स्मूथ भी होती हैं और इनवॉलंटरी होती हैं। ठीक है, these muscles may play vital role in function of digestion, blood vessel regulation and respiratory movement. Next, the maximum volume of air a person can expel from the lungs after a maximum inhalation is called, अभी मैंने बताया था, इनमें से क्या होगा, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, रेसिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी, इनमें से क्या होगा? आंसर इज वाइटल कैपेसिटी। मैक्सिमम एयर एक्सपेल करना आफ्टर मैक्सिमम इनटेक इज नोन एज वाइटल कैपेसिटी। क्या होगा इसका, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, दैट इज वीसी, वाइटल कैपेसिटी। नेक्स्ट, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वियोली अकर्स बाय, कौन से प्रोसेस से गैसियस एक्सचेंज होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और सिंपल डिफ्यूजन? भाई हाई टू लो पार्शियल प्रेशर की तरफ जाता है, हाई टू लो पार्शियल प्रेशर, ऐसे ही तो होता है गैसियस एक्सचेंज। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी कोशिएंट फॉर कार्बोहाइड्रेट इज, रेस्पिरेटरी quotient for carbohydrate is,
1.0, 0.7, 0.9 और D 1.2। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड टू ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। यही तो होता है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। तो ग्लूकोज के लिए आरक्यू क्या रहेगा? मतलब CO2 रिलीज्ड बाय ऑक्सीजन कंज्यूम्ड क्या होता है? इट इज 1। आंसर इज A। नेक्स्ट, the amount of air that remains in the lungs after a forceful expiration is inspiratory reserve volume, residual volume, tidal volume या vital capacity। अगर फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद भी जो थोड़ा बहुत एयर हम लोग के अंदर बचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एज द नेम सजेस्ट इट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। और इसका अमाउंट कितना होता है? नियर अबाउट 1100 to 1200 ml, जो कि बचाता है हमारे लंग्स को कोलैप्स होने से। this residual volume prevents lungs from collapsing। okay, next, the pigment responsible for oxygen transport in blood is the pigment responsible for oxygen transport in blood is भाई ये ब्लड है, इसमें आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज है, बहुत कुछ है इसमें। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? हीमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और मेलानिन। आंसर इज हीमोग्लोबिन। होता क्या है, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से बाइंड हो जाता है। ओके, लंग्स में ऑक्सीजन जाकर के हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाता है और फिर टिश्यू में जाकर के टिश्यूज में रिलीज हो जाता है। और एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन बाइंड 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। 1 HP can bind with 4 molecules of oxygen। Next, the primary respiratory center is located in the primary respiratory center is located in the cerebellum, medulla oblongata, pons or midbrain। so कहां पे होता है? जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है वो कहां होता है? मेड्यूला में होता है। द प्राइमरी रेस्पिरेटरी सेंटर कहां है? द प्राइमरी रेस्पिरेटरी सेंटर कहां है? ये दिस इज प्रेजेंट इन मेड्यूला oblongata। नेक्स्ट, Bohr effect is associated with A, increase in oxygen binding at lungs, B, decrease in carbon dioxide levels, C, increased carbon dioxide reduces hemoglobin's oxygen affinity, or D, chloride shift। तो बोर्स इफेक्ट में क्या होता है? द बोर्स इफेक्ट facilitates oxygen unloading in tissues। क्यों? क्योंकि एसिडिक पीएच होता है। और कहां से आता है ये एसिडिक पीएच? हायर CO2 कंसंट्रेशन की वजह से। जहां पे हायर CO2 कंसंट्रेशन होगा वहां एसिडिक पीएच हो जाएगा, तो वहां पे ऑक्सीजन अनलोडिंग होती है। यही है बोर्स इफेक्ट। एक्चुअली द बोर्स इफेक्ट says how CO2 levels or lower pH lead to a decrease in hemoglobin's affinity for oxygen। okay, it's nothing much। कैसे हायर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल और लोअर पीएच जो होता है वो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए डिक्रीज कर देता है। दिस इज बोस इफेक्ट। सो आंसर इज
increased CO2 reduces hemoglobin's oxygen affinity, जो बाइंडिंग एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन की और ऑक्सीजन की। नेक्स्ट, हाउ इज मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड? हाउ इज मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड? Dissolved in plasma as carb amino hemoglobin, as bicarbonate ions, or D, bound to albumin? तो होता क्या है? आंसर इज एज बाइकार्बोनेट आयंस। और किस एंजाइम का करतूत है ये? कौन सा एंजाइम ये काम करता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेजेस। ये क्या करता है? मोर देन 70% ऑफ CO2 को कहाँ रखता है? ये कन्वर्ट कर देता है किसमें? बाइकार्बोनेट आयंस में। बाइकार्बोनेट आयंस में कन्वर्ट करता है कौन? कार्बोनिक एनहाइड्रेजेस। आंसर इज एज बाइकार्बोनेट आयंस। नेक्स्ट, which muscle is responsible for normal inspiration? Diaphragm, abdominal muscles, intercostal muscles only, or D, none? नॉर्मल इंस्पिरेशन के लिए कौन से मसल्स रिस्पॉन्सिबल हैं? भाई कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा जिससे थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिससे कि लंग्स में एयर फ्लो बढ़ता है? इट इज डायफ्राम। नेक्स्ट, which gas has the highest affinity to hemoglobin? Which gas has the highest affinity to hemoglobin? अभी हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड हो रहा था, हाँ, ऑक्सीजन बाइंड हो रहा था, चार चार ऑक्सीजन बाइंड हो जा रहे थे। देन विच गैस हैज द हाईएस्ट एफिनिटी टू हीमोग्लोबिन? आंसर इज कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका जो होता है ऑक्सीजन से 250 टाइम्स हायर एफिनिटी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि क्लोज डोर में कुछ जला के ऐसा मत रखिए जिससे धुआं हो, क्योंकि इट विल रैपिडली बाइंड विथ योर हीमोग्लोबिन एंड कैन कॉज डेथ। ओके, टॉक्सिक हो जाता है फिर ये बॉडी में। और ये अल्टीमेटली बनाता क्या है? इट विल फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन विच इज वेरी वेरी टॉक्सिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड हो जाता है हीमोग्लोबिन से, और इसकी एफिनिटी कितनी है? 250 टाइम्स हायर एफिनिटी देन ऑक्सीजन। नेक्स्ट, Herring brewer reflex is initiated by? Herring brewer reflex is initiated by alveolar stretch receptor, medullary chemoreceptors, pons neurons, or baroreceptors? ये होता है alveolar stretch receptors। ये क्या करता है? इट प्रिवेंट्स ओवर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स। ये क्या करता है? ये फर्दर इंस्पिरेशन ना हो उसको रोक देता है, एंड देन इट विल प्रिवेंट ओवर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स। नेक्स्ट, परकैप्निया इज? परकैप्निया क्या होता है? कंडीशन है। क्या होता है? हाइपरकैप्निया। एक्चुअली दिस इज हाइपरकैप्निया। व्हाट इज हाइपरकैप्निया? दिस इज हाई कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा हुआ है तो अल्टीमेटली क्या होता है? रेस्पिरेटरी रेट आपका बढ़ जाएगा। रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, तो आपका ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मायोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन? मायोग्लोबिन कहां होता है?
हीमोग्लोबिन आरबीसीज में है तो मायोग्लोबिन कहाँ है? ब्लड, लिवर, मसल सेल्स और किडनी? आंसर इज मसल सेल्स। ये क्या करता है? ये मसल्स में ऑक्सीजन को स्टोर करता है और जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तब ये इसको रिलीज कर देता है। मसल कंट्रैक्शन के समय इस ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। नेक्स्ट, द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट्स राइट अंडर। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो होता है ये राइट की तरफ शिफ्ट कब करता है? किस कंडीशन में करेगा? लो कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाई पीएच, हाई कार्बन डाइऑक्साइड एंड लो पीएच, हाई ऑक्सीजन टेंशन और लो टेम्परेचर? ये बोर्स इफेक्ट है। बोर्स इफेक्ट के समय क्या होता है? ये राइट की तरफ शिफ्ट करता है। आंसर इज बी, हाई CO2 एंड लो पीएच। हाई CO2 एंड लो पीएच। नेक्स्ट, व्हाट इज द नॉर्मल ब्रीदिंग रेट इन हेल्दी अडल्ट? एक हेल्दी अडल्ट में नॉर्मल ब्रीदिंग रेट क्या होगी? एक रेस्टिंग फेज में, रेस्टिंग फेज में एक हेल्दी एडल्ट बैठा हुआ है तो उसका ब्रीदिंग रेट क्या होगा? आंसर इज 12 to 16 ब्रीथ्स पर मिनट। The enzyme carbonic anhydrase is present in? The enzyme carbonic anhydrase is present in plasma only, RBCs only, WBCs only, or D, both RBCs and plasma? भाई कार्बोनिक अनहाइड्रेज कहाँ रहता है? बाइकार्बोनेट आयन जो बना रहा था, ये बना रहा था ना CO2 से H2O से, फिर कंबाइन करके H2CO3 प्लस, फिर उसके बाद H प्लस और HCO3 माइनस, ये पूरे रिएक्शन को कैटलाइज करने वाला कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन आरबीसीज। नेक्स्ट, स्पायरोमीटर्स measures A blood pressure, B oxygen content, C lung volumes and capacities, D gas exchange efficiency? स्पायरोमीटर से मैं बता दूं आपको कि टाइडल वॉल्यूम, VC, IRV और ERV ये चीजें मॉनिटर होती हैं। ये क्या कह रहा है? इट मेजर्स लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। Okay, it is a diagnostic tool used to assess pulmonary functions. Pulmonary functions जो वेरियस लंग वॉल्यूम्स होते हैं, टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, रेसिडुअल वॉल्यूम्स, ये उसको हम लोग इससे मेजर करते हैं। नेक्स्ट, which hormone increases breathing rate under stress? Which hormone increases breathing rate under stress? Adrenaline, thyroxine, इंसुलिन और कॉर्टिसोल? अगर आप स्ट्रेस में हैं, if a person is under lots of stress, तो ब्रीदिंग रेट को हाई करने का काम कौन करेगा? इंसुलिन, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन और थायरॉक्सिन? इट इज एपिनेफ्रिन। एड्रेनलिन इसको क्या कहते हैं? और एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। ठीक है, ये हार्ट रेट को और ब्रीदिंग रेट दोनों को बढ़ा देता है स्ट्रेस में। आप खूब तेज दौड़ के आओ और उस समय आपकी ब्रीदिंग रेट और हार्ट रेट हाई रहती है, आपका ब्लड अच्छे से पंप होता रहे, ऑक्सीजन हर जगह पहुंचता रहे, इसलिए
एड्रेनलिन काम करता है। अचानक से आप डर जाओ, उस समय भी एकाएक से आपका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, और वहां पे काम कौन करता है? एड्रेनलिन। ओके, अगर ना हो तो क्या हो? अगर एड्रेनलिन ना हो तो क्या हो? हार्ट अटैक हो जाएगा। नेक्स्ट, एम्फाइसीमा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्मोकिंग इंड्यूस्ड alveolar डैमेज, वायरल इन्फ्लेमेशन, और डी लो ऑक्सीजन इन एयर। ये कंडीशन जो होती है एम्फाइसीमा की, इसमें क्या होता है? एल्वियोलाई जो होता है ये अपना इलास्टिसिटी लूज कर देता है, इलास्टिसिटी लूज कर देता है स्मोकिंग की वजह से। तो क्या होता है कि सरफेस एरिया जो होता है वो गैसियस एक्सचेंज के लिए कम हो जाता है। इलास्टिसिटी कम हो गई तो गैसियस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया कम हो जाता है। दिस इज caused by smoking induced alveolar damage. Okay, so that's it for today. हम लोग एनिमल फिजियोलॉजी के 4 वीडियोस करेंगे और हर वीडियो में 50 क्वेश्चंस होंगे। ऑलराइट, let's do the next 50 questions tomorrow. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe. Share it with your friends who are also preparing for NEET examinations or any other examinations. ये जो टॉपिक्स हैं ये हर जगह यूज होंगे आपको, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।